Jai Hind. My name is Gurusev Keshavani, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Subharti University, New York. Today I am going to give a lecture on role of education sanskar under the series of Universal Human Value Understanding Harmony. So the question is, what is the role of education? So you can see here, today the meaning of education is to earning money, earning a degree and getting a good job. And finally, after the education, we have a desire, aim, objective and purpose. If you can see in the slide, there is our desire to become a doctor. Someone want to become a doctor, someone want to become an engineer, someone want to become mother, someone also want engineer from IIT, someone are currently working as a farmer, and some of them are thief. What is the basic goals of different desire and aim? You can see here what they become and what they get and what to be. So if we discuss about the doctor serve for the service, money, respect and finally get happy and prosperous. After now, becoming an engineer, make a things, money, respect and overall happy and prosperous. Becoming from IIT, the more things, more respect and more money and finally happy and prosperous. If you are talking about the mother take care about their children and make a trust, respect and guidance and finally they get happy and prosperous. If you are talking about the farmer, they give the things, money, respect, finally they go to happy and prosperous. What about the thief, chore? They are also get a things, money and respect और finally happy and prosperous. So finally अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो सभी का जो गोल है फाइनली हैप्पी एंड प्रॉस्परस. द फाइनल, द बेसिक ह्यूमन गोल इज डिजायर, एम, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस. एंड दीज आर द वे टुवर्ड्स द गोल, नॉट द गोल, टुवर्ड्स द गोल. सो द करंट एजुकेशन सिस्टम इज फुलफिल आवर नीड दैट एवरीवन इज बिकम स्टेट ऑफ द हैप्पी एंड प्रॉस्परस. तो आप पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है. इन सब के होने के बावजूद अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, मदर, सब कुछ फार्मर, थीफ होने के बाद भी, बहुत सारी चीजें होने के बाद भी, अगर आप किसी से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस, तो वो बताएगा नो, आई एम नॉट हैप्पी. उसके पास सो एंड सो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है. व्हाई? सो क्वेश्चन इज दैट कि करंट एजुकेशन सिस्टम क्या वो अचीव कर पा रहा है गोल को? नहीं. अगर नहीं तो आइए समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो द क्वेश्चन इज, आर वी हैप्पी एंड प्रॉस्परस? सो आपको एक ही पिक्चर माइंड में दिखेगा कि सभी जगह किसी न किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम है, सभी कहीं ना कहीं जरूर है. So, from the first PPT, the role of education sanskar we will discuss in next slides. So, what is the role of education sanskar? The role of education sanskar is to facilitate, develop a competent to live definite human conduct. Definite human conduct, सही मानव आचरण के साथ जीना. और वो कैसे पॉसिबल है? क्या आज की शिक्षा व्यवस्था ये चीज सुनिश्चित कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे अगले कुछ स्लाइड में. आप देख सकते हैं, देयर इज 4 ऑर्डर एंड 4 लेवल. द ऑर्डर इज मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर. द कंडक्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्डर इज बेस्ड ऑन their characteristics. If you are talking about the first order, material order comes under soil, metal, water. The conduct is based on the constitution. वो किस तरीके से बने हुए हैं. In second order,
प्राणिक ऑर्डर, ट्रीज, प्लांट्स, कंडक्ट इज बेस्ड ऑन देयर सीड। नीम का पेड़ नीम हो सकता है, आम का पेड़ आम हो सकता है, लेकिन नीम का पेड़ आम नहीं हो सकता। इसी तरीके से आगे अगर हम देखेंगे एनिमल ऑर्डर में, अगर काऊ का बच्चा है, गाय का बच्चा है, तो वो उसका जो आचरण है, जो कंडक्ट है, वो बेस्ड है ब्रीड, जैसी उसकी ब्रीडिंग है। ऐसा नहीं कि काऊ का बच्चा लॉयन बन जाएगा, लॉयन का बच्चा घर में ले आइए तो काऊ बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, द कंडक्ट इज बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड संस्कार। तो जब मानव जो फोर्थ ऑर्डर का एलिमेंट है और सबसे लास्ट में आया है धरती पर, और उसका जो आचरण है वो उसकी एजुकेशन और संस्कार पे है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की बोलने की क्षमता है, और उसका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। और अगर आप देखें लिटरेसी रेट, तो भारत में लिटरेसी रेट बहुत हायर होती चली जा रही है धीरे धीरे, और इंडिया अगर यूनिवर्स की बात करें तो वहां भी लिटरेसी रेट बहुत हाई है। लेकिन फिर भी अगर हम शिक्षित हो रहे हैं और फिर भी क्राइम का रेट ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। और फिर बात आती है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मनी की, किस तरीके से हम इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग को समझ सकें, अपनी शिक्षा व्यवस्था को समझ सकें, और हम हार्मनी की तरफ आगे बढ़ सकें। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ क्या ह्यूमन रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है, क्योंकि ये आइडिया है, प्रपोजल है, जो भी चीजें मैं बात कर रहा हूं उसको आप बिल्कुल भी ट्रू ना माने या फॉल्स ना माने, आप उसको समझने का प्रयास करें अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग। क्या हमारे लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? तो आंसर आएगा यस। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके की रिलेशनशिप है और हम क्या बनना चाहते हैं और क्या हम बन रहे हैं। सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, चेक योर विद इन योर सेल्फ, डू यू वॉन्ट, व्हाट डू वी ऑल वॉन्ट, हम सब क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी ऑल वॉन्ट, हम सब क्या चाहते हैं। वी कैन एग्जामिन दिस विद इन आवर सेल्फ, हमें अपने आप में एक स्टडी करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। In this slide, do we want to be happy? क्या हम खुश रहना चाहते हैं? Do you want to be prosperous? क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? Do you want to be continually happy and prosperity? क्या हमारी जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी, इसमें हम कंटिन्यूटी चाहते हैं कि जैसा आज हम हैप्पी एंड प्रॉस्परस हैं, वो हमारी कंटिन्यूटी वैसी बनी हुई है क्या? माइंड में ये क्वेश्चन आता है सभी के, नहीं आता तो आना चाहिए। क्या ये पोजीशन है हमारी आज की डेट में? क्वेश्चन के रिगार्ड क्या स्टेट, आर वी हैप्पी? अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो क्या हम हैं? आर वी हैप्पी? अगर हम प्रॉस्परस रहना चाहते हैं तो क्या आज की डेट में, करंट में, आर वी प्रॉस्परस? आपको प्रॉस्परस की मीनिंग बता दूं कि मोर देन हैविंग द रिक्वायरमेंट, अ पर्सन हैविंग मोर देन द रिक्वायरमेंट, उसके पास जितना उसको नीड है उससे थोड़ा एनफ अधिक है, थोड़ा सा अधिक है, संग्रह करने के लिए, उसके जीवन की प्रत्याशा को आगे बढ़ाने के लिए। सो आर वी प्रॉस्परस? डू यू वांट टू बी कंटिन्यूअस हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी? इज देयर अ कंटिन्यूटी और आवर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी? क्या हमारी उस हैप्पीनेस जो लाइकिंग स्टेट है माइंड की और जो मोर देन रिक्वायरमेंट है, क्या हम उस स्टेट को कंटिन्यूअस रख पा रहे हैं? ये क्वेश्चन बनता है। क्या आप इसका आंसर सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं? अगर आप ढूंढ पा रहे हैं तो आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, अदरवाइज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किधर जा रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ वो गेटिंग जॉब के लिए है, अर्निंग मनी के लिए है, ओनली रेस्पेक्ट के लिए है, या कुछ और भी है? क्या कोएग्जिस्टेंस है? क्या हम एक दूसरे के अस्तित्व को रहने देना चाहते हैं या नहीं रहने देना चाहते हैं? अगर हम रहने देना चाहते हैं तो ये स्टेज हमारा क्वेश्चन मार्क की तरह हमारे सामने नहीं खड़ा हो। सो चेक विद इन योरसेल्फ, द हैप्पीनेस इन योर फैमिली इज, आपकी फैमिली में अनहैप्पीनेस किस पॉइंट को लेकर के है? ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी लाइक कार, एसी, फ्रिज, टीवी, अच्छा मकान, अच्छा
घर, अच्छी खाने पीने की सुविधाएं, क्या आपके घर में जो अनहैप्पीनेस है ये इस कारणों से है, या फिर ड्यू टू द लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ इन रिलेशनशिप, या आपके बीच जो संबंध है उनको लेकर के। इसे आप इंटरनली ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर, आपके परिवार में, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अनहैप्पीनेस किस वजह से है। फाइनली, हाउ मच टाइम एफर्ट आर यू इन्वेस्टिंग, और इनके लिए ये भी सोचना है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप फिजिकल फैसिलिटी के लिए देखिए और रिलेशनशिप के लिए देखिए। अगर हम फिजिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति लगा हुआ है फिजिकल फैसिलिटी के पीछे, उसके पास अच्छी कार हो, बंगला हो, घर हो, है ना, अच्छे अच्छे खाने हो, आउटिंग्स करते। तो फिजिकल फैसिलिटी के लिए हमारी जो दौड़ है वो दिन रात की लगातार बनी हुई है और हम लगातार डेली हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो वहां हम कुछ नहीं करते। अगर सपोज दैट हम रिलेशनशिप को देखें तो आज की डेट में सिंगल फैमिली की तरफ हम मूव कर रहे हैं, कंबाइंड फैमिली हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है। बच्चा माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता, माता पिता बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते। आखिर ये गैप क्यों? कभी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है, कभी फ्रेंड्स के बीच डिस्प्यूट है, कभी सोसाइटी में लेकर के किसी चीज को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं। क्यों? और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट, तो क्या हम उसके लिए कोई प्रयास करते हैं जितना हम फिजिकल फैसिलिटी के लिए करते हैं? तो ऑब्जर्व करेंगे आप कि शायद हमारे रिलेशनशिप में सबसे बड़ा है कि हम एफर्ट ही नहीं करते, हम इन ह्यूमन बिहेवियर की तरह आगे बढ़ते हैं, अमानवीय व्यवहार की तरह व्यवहार करते हैं। माना कि कभी हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सभी के बीच होते हैं, परिवार में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे भी। लेकिन क्या हम उस व्यवस्था में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कितना एफर्ट करते हैं? हमेशा हम किसी न किसी चीज को लेकर के अमानवीय व्यवहार करते रहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी से जोड़ता हूं कि सपोज दैट आपका एक नेबरहुड है, पड़ोसी है, और उससे आपसे कई दिन से कोई बातचीत नहीं हुई है, और आपके घर में आप बैठे हैं और अच्छी एक कॉफी के साथ आप नमकीन का एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आपके पास पकौड़े हैं आपकी प्लेट में, और अचानक से वो आता है और आपके सामने बैठ जाता है। अब मुझे बताइए, कुछ बोलता नहीं है वो, और कुछ देर बाद वो चला जाता है। तो पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों आया ये? क्यों आया? जब मेरी बातचीत नहीं है, मेरा रिलेशनशिप इसके साथ अच्छा नहीं है, तो क्यों आया? और अब मैं कॉफी और चाय जो भी है, पकौड़े और नमकीन, उनका एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद वो हमारा जो नेबरहुड है, पड़ोसी है, वो कुछ बोलता नहीं और चला जाता है। तो क्या होता है? अभी भी क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में कि वो क्यों आया था, कुछ बोला क्यों नहीं। अब आप जरा देखिए, आपकी हैप्पीनेस कहाँ गई? क्या वो कॉफी, नमकीन और पकौड़े का टेस्ट आपके जीवन में आ रहा है? नहीं, जबकि उसके टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन ये मानवीय व्यवहार है। अगर आपस में मिलकर के हम पूछ लेते कि क्यों आए हैं, क्या आशय है, चलिए आप बहुत दिनों बाद आए हैं, उनको भी कॉफी ऑफर कर लेते, शायद बातचीत कर लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। ना हमने कॉफी ऑफर की, हमने उसे छिपा लिया, ना उस बंदे ने भी कुछ बोला। फाइनली क्या हुआ? आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपकी हार्मनी गायब हो गई। आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है कि जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसके माइंड में कुछ करके गया है, कुछ सोच के आया था पर बोला नहीं, क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ हमारे खिलाफ करने आया होगा, कुछ करके ही गया होगा, पर हमने ये भी नहीं सोचा शायद वो किसी परेशानी में हो, शायद वो पुरानी रंजिश को भूल करके आपके साथ मित्रता के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हो। तो देखा जाए तो जितना एफर्ट हम फिजिकल फैसिलिटी के लिए करते हैं उतना हम रिलेशनशिप के लिए नहीं करते। ऐसा आज की स्टेज में हर एक रिलेशनशिप में हो रहा है, चाहे वो भाई बहन का हो, माता पिता का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, और नेचर के साथ भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए हम आज की डेट में कोई प्रयास भी बहुत कम से कम करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी जरूरत का है तो प्रयास करते हैं, अदरवाइज हम प्रयास नहीं करते हैं। तो हमारा जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, ऑर्डर्स और लेवल और रिलेशनशिप है, वो किसी भी व्यवस्था में हमारा सही नहीं चल रहा है। और देखा जाए तो जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या संस्कार नहीं मिले? ऐसा नहीं, संस्कार तो हमेशा से दिए गए, लेकिन हम अगर व्यवस्था को और लेवल में व्यवस्था को, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में अगर नहीं चल पा रहे हैं, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, नेचर के साथ हो, और इवन अपनी बॉडी और आई के साथ भी हो।
अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हमारा आई जो है, हमारे बीच जो कॉन्शियस माइंड है वो अगर सही चलेगा तो हम शायद राइट डिसीजन ले पाएंगे और हमारे अंदर देन राइट फीलिंग आएगी और देन जो फिजिकल फैसिलिटी है उसकी हम लिमिट को डिफाइन कर पाएंगे और अपने जीवन को हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। The unhappiness is more due to the lack of fulfillment in relationship. Most of time the effort is spent on the physical facility. तो हम बहुत सारा समय सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी की तरफ ध्यान देते हैं कि जो भी वस्तुएं हमारे पास नहीं होती उसकी हमें चाहत होती है, पर जो चीजें हैं उसको हम रिलेशनशिप को हो या फिजिकल फैसिलिटी जो भी हमारे पास उसको हम कंटिन्यूसली उसको उसी सहज में सहयोग रख करके हम उसको आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमारे अनहैप्पीनेस का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है वो प्रभावित करता है हमारी हैप्पीनेस को। सो check in yourself, for the human being physical facility is necessary but relationship also necessary. On examination carefully we find that the fundamental difference between animal and human being. The physical facility is necessary for the human animal. भाई अगर आप देखेंगे तो एक जो एनिमल है उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जैसे ही वो फिजिकल फैसिलिटी उसको मिल जाता है, जैसे काऊ है तो वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर देती है, वो रेस्ट करती है, फिर उसके दिमाग में और कोई बात नहीं आती, वो रेस्ट ऑफ माइंड में चल गया। लेकिन ऐसा हर एक एनिमल के साथ। लेकिन ह्यूमन बीइंग को देखा जाए, उसको जो फिजिकल फैसिलिटी मिल गई, जो चाहता था वो मिल गई, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ हजारों ऐसे विचार आते रहते माइंड में, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो रेस्ट माइंड में नहीं आ पा रहा है। तो देखा जाए तो अनहैप्पीनेस का कारण रिलेशनशिप है या फिर फिजिकल फैसिलिटी की तरफ दौड़, जो हमारी रेस लगी हुई कि संग्रह संग्रह संग्रह, कितना हम चाहते हैं कि अपने पास संग्रह करें, और रिलेशनशिप को हम साइड में रख के चल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी को हमारे पास ले आ रही है। तो वो अनहैप्पीनेस का कारण बन रहा है, और हमारी जो कहते हैं ना कि वैल्यूज वो डाउन हो रही है, और एजुकेशन सिस्टम हमारी उस वैल्यूज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, गैप कहाँ है, और उसको हम ओवरकम कैसे करें। क्योंकि एनिमल को तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से लेना देना है, बाकी किसी चीज से लेना देना है। बट अगर इंसान के तौर पे देखें, ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखें, तो रिलेशनशिप आल्सो इंपॉर्टेंट विद फिजिकल फैसिलिटी। So here you can, when a cow gets a stomach full of a grass, become comfortable and sits, chew the cud. When the human being has lack of the physical facility, he become uncomfortable and unhappy. But once he get physical facility, he forget about and start thinking about hundred of things, thousands of things. Check yourself. You feel happy every day that you are getting enough to eat. अपने आप में चेक करें, क्या हम इतना नहीं कि हमें डेली का भोजन मिल जा रहा है और उससे हम खुश रहें। एक बार हमारे पास भोजन मिल गया, हमें खुश हो जाना चाहिए, थैंक्स टू गॉड कि आज हमें भोजन मिल गया। हम कई वर्षों तक के लिए संग्रह करना चाहते हैं, जबकि एज देखी जाए तो 100 ईयर्स मैक्सिमम, एवरेज 60 ईयर, लेकिन हम संग्रह ऐसा करते हैं कई पीढ़ियों तक। क्या ऐसा एनिमल करता है? नहीं। तो हमसे बेहतर तो एनिमल नहीं करता। तो फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी बट रिलेशनशिप आल्सो नेसेसरी। तो फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि इंसान के लिए फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा जो डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट है, अगर हमारा जो आचरण है वो अगर राइट वे में जा रहा है और हम अपनी फिजिकल फैसिलिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के आधार पे, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा अधिक, संग्रह के लिए नहीं, तो हमारा जो बेसिक एम है, जो हमारी शिक्षा सेवा संस्कार की जो भावना है, जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, और वो फिर स्ट्रांग होगा अगर हम ये चीज को कर पा रहे हैं तो। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि फॉर एनिमल फूड की आवश्यकता तो है, नेसेसरी भी है, और वो पर्याप्त मात्रा में भी, एडिक्वेट अमाउंट में है। बट फॉर वही अगर दूसरे पार्ट में देखें, ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी है, बट ऐसा लगता है कि पर्याप्त नहीं। क्या ऐसा है?
क्योंकि जिस हिसाब से हम फिजिकल फैसिलिटी की तरफ भाग रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो आज की थिंकिंग तो ये, जबकि ऐसा नहीं है। फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और अगर हमारी रेस सिर्फ इस तरीके से रहेगी तो हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल कॉन्शियस की तरफ ही बढ़ेंगे। जबकि धरती पर जब जानवर, एनिमल्स के लिए एनफ अमाउंट में फूड अवेलेबल है तो हमारे लिए भी अवेलेबल है। बात है रिलेशनशिप की कि हम किस तरीके से नेचर के साथ, लिवल फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ अपना एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। साथ के साथ यहां पे देखिए, फीलिंग इन रिलेशनशिप विद द अदर्स ह्यूमन बीइंग, राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ आर नॉलेज ह्यूमन बीइंग थिंक अबाउट इंश्योरिंग दिस एडिशन फिजिकल फैसिलिटी। अब देखिए, in this slide we want to discuss here that there are two category of the human being. The number one is lacking physical facility, unhappy, deprived. Having physical facility, unhappy, deprived. सुविधा संपन्न, दुखी, दरिद्र, एक वो कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग की जिसमें लोगों के पास प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है, सुविधा से संपन्न है, फिर भी दुखी दरिद्र हैं, और पर डे उनका जो गोल होता है, जो एम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ संग्रह की तरफ रहता है। उनको रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके पास सुविधा है, सब कुछ किए, वो संपन्न है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो रेस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो वही है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्शन कर सकें। और आपने देखा कि डिजायर और एम में फाइनली जो लास्ट स्टेज है, क्या इंसान बनना चाहता है, वो हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस चाहता है, बट कैसा हो पा रहा है? तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि सुविधा संपन्न, दुखी, दरिद्र, और एक है दूसरी कैटेगरी ह्यूमन बीइंग की, सुविधा विहीन, दुखी, दरिद्र। तो आप देखिए कि सुविधा विहीन, दुखी, दरिद्र, जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो भी दुखी है, और एक संपन्न है वो भी दुखी है। तो ये दो कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग की आज की डेट में। जबकि हम होना क्या चाहते हैं? हैविंग द फिजिकल फैसिलिटी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। क्योंकि जो हमारी स्लाइड थी ऑब्जेक्टिव की, लास्ट वाली एम की, वो यही थी कि सभी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रहना चाहते हैं। बस ये दो कैटेगरी में ऐसा पॉसिबल आप दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा एम उनका नहीं है। कैटेगरी तो ये है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो चेंज होनी चाहिए। चेक विद इन योरसेल्फ, वेयर आर यू नाउ? आप किधर हैं? आप फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं, या थर्ड पे? आपको सोचना पड़ेगा कि आज की शिक्षा व्यवस्था हमें थर्ड की तरफ ले जा रही है या फर्स्ट और सेकंड की तरफ ले जा रही है। हम क्या चाहते हैं ये हमें सोचना। चेक विद इन योरसेल्फ। इफ आवर लिविंग इज ओनली ऑन द फिजिकल फैसिलिटी, then we are living with the animal conscious, because the animal live only on for the physical facility and fulfilled by the that not a human being. अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी पे जी रहे हैं तो हमारी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो सीधी सीधी एनिमल कॉन्शियस की है, क्योंकि एनिमल को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। फिर भी एनिमल को देखिए कि वो रेस्ट ऑफ माइंड में चला जाता है जब उसका पेट भर जाता है, बट इंसान के केस में एनिमल से भी ज्यादा क्रूरल हो रहा है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। सो नाउ हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए, और ये हम सीख पाए तो हम देखेंगे, इफ वी आर लिविंग फॉर 3 ऑल, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप विद राइट फीलिंग फ्रॉम इन सेल्फ, एज वेल एज the physical prosperity, the physical facility, then we are living with the human conscious. तो कह सकते हैं कि 3 चीजों की जरूरत है हैप्पीनेस की। फर्स्ट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप विद राइट फीलिंग, एज वेल एज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी दैट टेंड टू अस प्रॉस्पेरिटी। हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, ना कि संग्रह की तरफ बढ़े। Human being can fulfill by being happy and prosperous on the basis of these 3. So देखिए, right understanding, right relationship और physical facility। अगर हम ह्यूमन कॉन्शियस की बात करते हैं
जो हमारा डेफिनेट कंडक्ट है वो अगर इन सभी चीजों को लेकर के 3 पॉइंट्स को लेकर के आगे प्रोग्रेस करता है तो हम पाएंगे कि हम है म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे और हम एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर हम तीनों को कंबाइंड वे में अगर माइंड में लेके चलते हैं तो जो ह्यूमन है वो ह्यूमन कॉन्शियस की तरफ बढ़ेगा और अच्छा भी है, वो अच्छे आचरण के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी सोच को बदल दे। In this slide you can see here the transformation development, किस तरीके से विकास होगा। Right understanding, right relation. So in this slide you can see here the transformation from by the concept of the right understanding, by itself, by the good relationship with good feeling and with the limited physical facility. So आप देख सकते हैं कि अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो हम दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी करें। अगर हम सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, फिजिकल फैसिलिटी की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं अपने पास संग्रह करने का प्रयास करेंगे। तो उसके तहत क्या होगा कि फिर दूसरों का शोषण होगा, कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉयटेशन करेगा और ये कहीं ना कहीं हमारी जो हार्मनी और हैप्पीनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो फाइनली हमें ट्रांसफॉर्म होना है विद ऑल दीज थिंग्स के साथ और हम राइट अंडरस्टैंडिंग ले आएंगे अपने अंदर और राइट रिलेशनशिप के साथ, राइट फीलिंग के साथ आएंगे और फिजिकल फैसिलिटी जो हमें नीड है, जितनी नीड है उसके आधार पे हम मानव चेतना की तरफ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे, ना कि हम एनिमल कॉन्शियस की तरफ जाकर के अपने आप को रियून करेंगे। So how the transformation comes, you can see here with the right understanding, with the right relationship, with limited physical facility, a mutual prosperity can be transformed. Our mutual happiness can transform from the animal conscious to the human conscious. So, शिक्षा संस्कार की भूमिका जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम एक लाइफ से दूसरे ह्यूमन कॉन्शियस की तरफ हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हम सबकी प्रॉस्पेरिटी और सबके हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। एक सर्वे है, आप इस सर्वे रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मोर देन 1 बिलियन ऑफ टन्स ऑफ फूड लॉस्ट आर वेस्टेड एवरी ईयर। जैसा कि रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, about a third of all food produced for the human consumption each year. Roughly 1.3 billion tons is lost waste are according to the new study commissioned by the United Nations Food and Agriculture Organization. So global food production is 6 times requirement. जो हमारा फूड प्रोडक्शन रेट है ओवरऑल वर्ल्ड का वो 6 टाइम ज़्यादा है रिक्वायरमेंट की। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। द ग्लोबल फूड वेस्टेज इज 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन। और वहीं पर अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो हमारा वेस्टेज भी 1/3 प्रोडक्शन का है। सो वेस्टेज इज एनफ टू द फीड 1300 करोड़ पीपल ऑफ द ईयर। तो हम देख सकते हैं कि 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ साथ हम कितना ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। और अगर वेस्टेज को हम कैलकुलेट करें तो 1300 करोड़ पीपल के हम पेट को, उसके स्टमक को फुलफिल कर सकते हैं, उसकी नीड को हम फुलफिल कर सकते हैं जो फूड की रिक्वायरमेंट है। सो हैव वी अंडरस्टैंड द राइट यूटिलाइजेशन। क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि इसका किस तरीके से सही उपयोग हो सके। तो फाइनली यू कैन सी इट इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रोडक्शन। क्या ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन है? आइदर इट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप, आइदर इज द क्वेश्चन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप इसको देखेंगे और पाएंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इतना फूड होने के बावजूद कितना वेस्ट हो रहा है, तो फिर बात आ जाती है कि राइट एजुकेशन सिस्टम की, फिर बात आ जाती है राइट एजुकेशन संस्कार की। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड संस्कार फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो अगर हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट फीलिंग होगी और फिजिकल फैसिलिटी को हम डिफाइन कर पाएंगे और हम ऐसी शिक्षा ले आएंगे जो कि हमें इन चीज़ों की तरफ फोकस करे, ह्यूमनिटी की तरफ फोकस करे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ फोकस करे और जो लाइफ है, जो जीवन है, सभी ऑर्डर्स के साथ, सभी लेवल के साथ, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, एग्जिस्टेंस हो, सभी के साथ अगर हम गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखेंगे, शेयर करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हम हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो एस्पेक्ट है ह्यूमन वैल्यू में, अंडरस्टैंडिंग में, हार्मनी में, वो हम फुलफिल कर पाएंगे।
So you can see in this slide the role of education sanskar is to facilitate the development of three things. The first is right understanding, second is relationship, and third one is physical facility. So parents, teacher, society, public environment has the responsibility to provide the right education and sanskar to their child. So education developing right understanding. Sanskar commit preparing practice for the right living, preparation including learning the right skill and technology. So entire सेशन में जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे अभी तक वो एक आइडिया और प्रपोजल है जो आपके वर्क और बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इट इज जस्ट अ प्रपोजल. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग इज ट्रू और फॉल्स. सो एंटायर सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों की जो भी हमारी थ्री सिस्टम है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी का, किस तरीके से हमारी मानव व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से हमारी फैमिली सिस्टम है, किस तरीके से सोसाइटी में और साथ के साथ नेचर के साथ हमें किस तरीके से जीना है एक व्यक्तिगत पर्सनल एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह, एज ए मानव की तरह, परिवार में, फैमिली में एंड सोसाइटी में, एज वेल एज नेचर के साथ हम किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी को हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. सो यू कैन सी इन दिस स्लाइड the role of education in and sanskar. So there is a four order in nature. First order is physical order, second one is pranic order, third one is animal order, and fourth one is human order. So in this order you can see the physical order contains soil and metal, and their activity is based on the composition and decomposition and their existence in universe. So natural characteristic is composition and decomposition, and the conduct of this order is based on their constitution, how it will become, कैसे ये बना है. सपोज दैट हम मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल, सपोज हम स्टोन की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि किस आधार पे ये बने हैं. सपोज वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके बेस्ड है कि किस तरीके से वो बने हुए हैं. फाइनली अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो अंडर द क्रॉनिक ऑर्डर कम्स द प्लांट एंड ट्रीज. सो प्लांट एंड ट्रीज हैज द रेस्पिरेशन सिस्टम, वो सांस ले सकते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनका नर्चरिंग होता है ना, और उनका जो कंडक्ट है, उनका जो आचरण है, कंडक्ट इज बेस्ड ऑन दी सीड. सपोज दैट कि अगर आम का बीज है तो वो आम का ही पेड़ होगा, नीम का बीज है तो वो नीम का ही पेड़ होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि नीम के बीज से आम का पेड़ निकले. सो द कैरेक्टरिस्टिक इज बेस्ड ऑन द कंडक्ट इज बेस्ड ऑन दी सीड. So finally, if you are talking about the third order, the animal order, it comes to animal and birds like a lion, parrot, peacock, and they have a body. They have a selecting and translink in the body will to have in eye. So further in the body, their characteristic based on the breed. सपोज दैट अगर गाय का बच्चा है तो वो गाय का होगा, और लायन का बच्चा होगा तो लायन होगा. अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर काऊ का बच्चा वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन ही रहेगा, उसको आप कहीं भी ले जाइए. अगर लायन के बच्चे की बात करें, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन, उसका कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही क्योंकि उनकी ब्रीड वैसी ही है. सो वहीं अगर हम अपार्ट फ्रॉम बात करें कि ह्यूमन ऑर्डर की, तो अंडर द ह्यूमन ऑर्डर the human comes and I have a body, I have a potential of understanding I, so will to live with the continuous happiness in I. So अगर हम बात करें कि ह्यूमन ऑर्डर की, तो ह्यूमन ऑर्डर का जो कंडक्ट है, जो आचरण है, दैट इज बेस्ड ऑन दी एजुकेशन, शिक्षा एंड संस्कार. अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो हमारी लिटरेसी रेट आज की डेट में इंटायर यूनिवर्स की बात करें तो 80% से लेकर 100% लिटरेसी रेट है. एज वेल एज अगर हम क्राइम का ग्राफ देखें तो वो भी कहीं ना कहीं डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. सो आखिर इसके पीछे क्या है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है? अगर सही है तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट तो हाई है. आवर कंडक्ट इज ह्यूमन ऑर्डर का कंडक्ट बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ शिक्षा, सेवा, संस्कार. सो बट अगर शिक्षा बढ़ रहा है तो ऐसी चीज़ें क्यों, क्राइम रेट क्यों हाई हो रहा है? तो कहीं ना कहीं समय आ गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की. और अगर हम कंटिन्यूस हैप्पीनेस, हार्मनी चाहते हैं और हम एक्जिस्टेंस अपना चाहते हैं, अगर हमारा जो कंडक्ट है उसी आचरण में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने मानवीय व्यवहार को सुधारना पड़ेगा. कहीं ना कहीं उस पर हमें काम करना पड़ेगा, शिक्षा के सिस्टम को बदलना पड़ेगा. तो अंडर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू अंडरस्टैंडिंग हार्मनी के तहत हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, सबसे विजडम क्रिएचर है ऑफ दिस यूनिवर्स, वो कुछ ना कुछ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग के साथ और अपनी फिजिकल फैसिलिटी को डिफाइन करते हुए नया कुछ कर सकता है और हार्मनी क्रिएट कर सकता है एंटायर यूनिवर्स के लिए. अदरवाइज आप देखेंगे कोविड टाइम पे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए कौन फर्स्ट आया, तो सबसे पहली बात है कि प्राणिक ऑर्डर कम्स फर्स्टली कम ऑन दी एंटायर यूनिवर्स, मिट्टी, मेटल, एंड सेकेंडरी प्राणिक ऑर्डर, ट्री, प्लांट्स कम सेकेंड, एंड थर्ड एनिमल ऑर्डर, एंड फोर्थ लास्ट कम ह्यूमन ऑर्डर.
लास्ट का ह्यूमन ऑर्डर बट ड्यूरिंग द कोविड का टाइम आप देखिए कि कैसे ह्यूमन बीइंग फर्स्टली यहाँ से जा रहा था, डेथ कर रहा था, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बट बैडली इम्पैक्टेड ऑन दी फोर्थ ऑर्डर, सबसे बाद में आया है और सबसे जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा, रोल ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सबसे ज़्यादा सफर करने वाले हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट का यही आशा है कि किस तरीके से एक मानव की भूमिका इंटायर यूनिवर्स की भी आ गया रुक गया। दोबारा, हाँ रुक के दोबारा हुआ, मतलब वो दोबारा